Yeah, so once again, good evening, everyone. So anybody like to give any example, any stock, and we'll continue with that. Anyone? Sir, SBI. SBI. Let's start with the SBI. Okay, this is already my chart here. I mostly everything deleted. Good. Okay, so let's start with the SBI. We'll start with always with the monthly chart. It's all, selected log, selected auto. And just to adjust these prices, I'll reduce little bit the time frame here. Let me reduce the volume and RSI. Okay. So starting from here, just by visually, we can get the idea that up to this range from 2000, you can say 99 to 2000, up to 2010, SBI was growing rapidly. And those who remembers knows that this was the biggest bull market India had ever seen in the last 30 years. Earlier, there was some patches, there was good market, but for 7-8 years, this was the best market we can say for the bulls. Again, this was a consolidation phase here, and now we are seeing something happening because it is price is above the all-time high. So just by looking at it, this is the idea, initial idea I got. Let's see what is happening. Trend was upward here. Then I can see EMA that I can see 50 EMA is getting dissected by the price multiple times. So we know that this particular price range is sideways zone. So you know that this is a zone in which the price is there for multiple times, multiple years. Give me 1 minute. Yeah, so from here, this line to this line, this was the range, and this is quite a big range, 148 rupees to 350 rupees. So somebody if has realized after some time, you can say after this, if somebody realized that this is the top and bottom has been established, means this is a top after 2 peaks, and this is the bottom after 2 bottoms, he can next time can try to buy near the bottom for the target of top. So this difference is itself more than 100% gain. So even if a stock is a sideways and you realize the range at an early stage, because after some time what will happen, if things will repeat very obviously, at certain point something will break, either upside or downside. So, but the good thing is there that if you are buying near the support here, very quickly you will realize that this is getting failed. Suppose it fails, it goes down. So immediately you will be out, right? So there was a good probability that this will go up. If that does not work, you can be out with a very little or minimal loss. So once it is gone up here, there is a good chance that it will return once again because it's a strong resistance. So once you see even if you not like to book the profit, at least when the EMAs are broken, you can get out of it or book partial profit. Once again, you have seen price near 148 range. Should you buy or not? What happened here? This is the first time stock has broken this range. So there is a good chance that here onwards, the new journey will start, right? So on the monthly chart itself, we had, if we knew this one, we could have a couple of good trades, especially when the price was falling. You should know what is the best support
when the price is falling very rapidly, you should know what is the best possible support for particular stock. Any stock that you are studying, you should know. And you should always prepare. Suppose you are saying you want to invest for the long term. So you should know your best picks from each sector, like banking or auto or metals. Every sector, you find out your best top picks. Okay. And you should know what is the first best price you can get, the second best price you can get, and third best price you can get. So that will come from weekly support, monthly supports, right? And some support that has created over the multiple year, some horizontal supports or some trend support. So these are the anything, any day, some crash can come. It can come. Something might happen in the world which can propagate any crash. Okay, especially when the market has been so much up in the 1.5 year. So you should prepare for these kind of supports. Today you have not invested in SBI, but if you know that SBI has a strong support and at 148, whenever it will come, there can be a possibility to trade, right? And with the potential to get more than 100% gain. Am I right? Yeah, correct. Yes. So knowing the range is very important. Now let's see what was happening here. Let's see if I can draw a channel. Looks to me a channel here from this range to this range. This was the price band. See how beautifully the tops has matched. So same way, if this happened here, similar thing can happen in any other stocks also. If you have two bottoms and few tops, similar things can happen in other stocks also. Now this was a trend. Once this trend has been broken, can we consider that we should take some profit and we should go out of this stock? Because once Yes. a trend broken, Yes. we don't know what new trends will appear. It might appear sideways, it might start a new Goes down. downtrend. Yeah. We never know. So any bullish trend, if you are invested, follow till the time it is in the bullish zone. Once it started showing the sign of weakness, some new trends will appear. Once you are sure that the new trend is this is the support and this is the resistance, you can start playing according to your trade plans. Now, this was the history. What is happening right now? Can we draw something from this zone to this zone? Let's see. I will start from the lowest bottom till lowest bottom and see if there is any particular things which is interesting. So again, this is one more interesting thing. So when this trend was over, again, I can see that this is a center line acting as a support and resistance. Are we facing same resistance right now? Yes. So does this looks amazing or not? Just by taking all the highs into consideration and the maximum low, we are getting the idea whether the stock is near the resistance or there is an opportunity. So here there is opportunity, but immediately after this zone, we have a resistance. And this can go with reference to this resistance, just like here. जब वो रेजिस्टेंस के पास आएगा तो धीरे धीरे उसके साथ चल भी सकता है. रेजिस्टेंस के पास आने का ये सेंस नहीं होता है कि वो वापस ही आ जाना है. बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है. तो जब आपको इसमें से एग्जिट की कॉल लोअर टाइम फ्रेम पे मिलेगी तो वहां से आप एग्जिट हो सकते हो. अभी तो इसने मल्टी ईयर हाई को ब्रेकआउट किया, राइट? 2010 के हाई को ब्रेकआउट किया. सिमिलर हमने एयरटेल देखा था, राइट? तो अभी एक सीक्वेंस दिख रहा है हमें कि जो 2001 से 2010 के डिकेड में जो चले थे स्टॉक, वो बहुत सारे स्टॉक क्या हो गए थे? साइडवेज हो गए थे. और उन स्टॉक्स में हम एक बार फिर से नई मूवमेंट देख रहे हैं. तो दिस कुड बी अ न्यू इंटरेस्टिंग trend there that might be emerging, and this similar things are happening in many pharma stocks also. Pharma had a great bull run for 14-15 years.
and up to 2014 and 15 we had a very one dimension, one line growth in pharma stocks, and then for next 6-7 years they were in sideways zone. We'll see Sun Pharma and others. So same thing, similar thing happening in those places also. So this might be one possibility that something like this new trend is emerging. The old dark horses are again might be starting a new trend. So यहाँ तक में अभी तक तो हमें पता चल रहा है सिर्फ दो चैनल से ही कि एक तो साइडवेज ब्रेक कर गया है, दूसरा वो अपसाइड, एक अपसाइड तो मेंटेन ही है और उसमें वो सेंटर के आसपास पहुंच रहा है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अभी वीकली पे जाते हैं, नया ट्रेंड क्या है वहां पे देखते हैं। 5 ईयर ट्रेंड में यहाँ से जब ईएमए ब्रेक किया, ये तो साइडवेज ट्रेंड था क्योंकि मोस्टली फ्लैटिश था इस जोन में ईएमए। नीचे गया, जब ऊपर आया तो यहाँ पहली अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ दूसरी अपॉर्चुनिटी थी, और जब वो यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ तीसरी अपॉर्चुनिटी थी। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, देखें 350 रुपीज से लेके स्टॉक 433 चला जाता है, एक हमें मोर देन 20% का गेन दे देता है। आता है, रीटेस्ट होके फिर से उड़ जाता है। अब ये रीटेस्ट का जोन जो है आपको मंथली चार्ट्स पे कहीं मिल सकता है। ये देखो मंथली क्लोजिंग नहीं हुई है, तो एक बार जो मंथली का ब्रेकआउट था उसने मंथली बेसिस पे मेंटेन रखा है। इस जोन को देखिए ध्यान से, जो मंथली का ब्रेकआउट था वो मंथली बेसिस पे ही मेंटेन रहा, राइट। तो इस तरीके से जब मंथली पे होता है कोई ब्रेकआउट तो मोस्टली मंथली पे होल्ड करता है, तो आप ब्रेकआउट को सस्टेन्ड मान सकते हो। अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, सेम वीकली पे देख लिया हमने कि ये यहाँ से निकल के अभी भी अपसाइड है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक लेटेस्ट सपोर्ट बना सकते हैं। ये हमें पता चल गया मल्टीपल टाइम्स इस प्राइस से ऊपर है, वो ध्यान से देखिए। इस प्राइस से बाउंस्ड है, तो इस प्राइस को हम सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर ये ब्रेक कर गया तो स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं, राइट। तो अभी मल्टीपल ईयर में हमें लेटेस्ट सपोर्ट भी मिल गया, एक मंथली सपोर्ट भी मिल गया। तो अगर कोई स्टॉक में करेक्शन आता है तो यहाँ मंथली सपोर्ट से उठते हुए आपके लिए इंटरेस्टिंग रह सकता है। 1 ईयर पे जाके देखते हैं कोई पर्टिकुलर ट्रेंड चैनल कुछ बन रहा है। ओके, yeah, so this particular range, see one interesting thing is happening. The stock was almost it was going within this particular trend. Is this, are you okay with this particular trend? We are seeing some activity near the center and top and bottom. Now once it was out, same channel become resistance. It does not let it came in once again and the price has gone down. Now one thing is for sure, जो अभी तक ये बढ़ने का ऊपर ये पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा था, वो पर्टिकुलर ट्रेंड ब्रेक हो गया है। तो अभी हमें ये ट्रेंड, ये जो चैनल है ये हमारे काम का नहीं रह गया है, अदर देन दैट कि ये जो चैनल का बॉटम है वो अब के लिए, अब आगे के लिए रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ से जो ये नया बॉटम आया है और ये जो नया पुराना बॉटम है, यानी जो इमीडिएट बॉटम है और जो प्रीवियस बॉटम है, वहां से देखेंगे कि कुछ जनरेट हो रहा है क्या। तो लाइन से शुरू कर सकते हैं, चैनल से शुरू कर सकते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे बहुत ही काफी अच्छे दिख रहे हैं। तो बाकी चीजें डिलीट कर देते हैं, ये काम की नहीं है। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस था वही कुछ जोन सपोर्ट है और वहीं से ये स्टॉक चल रहा है। तो जो इसको फेल्योर मान सकते हैं, यानी जो ये पर्टिकुलर ट्रेंड है उसका ये फेल्ड एरिया है और वापस से इसी चैनल में वापस से आ गया है। तो इसको थोड़ा और रिफाइन करेंगे अभी वीकली चैनल पे देख के, उसके हिस्ट्री से भी हमको कुछ मिल सकता है।
हम इस बॉटम प्राइस को यहाँ लेते हैं और इस प्राइस को यहाँ पे लेते हैं. दिस कुड बी दिस लुक्स इंटरेस्टिंग. अब इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रीवियस हाई है, यहाँ पे ये फेल हुआ है ऊपर जाके. अब इस पर्टिकुलर हाई को क्रॉस करने के बाद इस स्टॉक में कुछ मूवमेंट्स आ सकती हैं, क्योंकि ये एक जोन था, फर्स्ट टाइम फेल हुआ है. तो ये आपके लिए दो मेजर रेजिस्टेंस बन जाएंगे, ये और प्रीवियस हाई. दो ऑब्वियस प्रीवियस हाई हमेशा ऑब्वियस रेजिस्टेंस रहता है. तो ये कभी भी यहाँ आने पे इस पर्टिकुलर जोन में आके उठता है, ये हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ से इंटरेस्ट लिया जा सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में. अभी बाकी चीजें मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वॉल्यूम को, आरएसआई को. अभी सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पे बात कर रहा हूँ. जब भी ये ट्रेंड से फेल्योर हो जाएगा, वंस अगेन आप इसका इंटरेस्ट इससे बाहर करेंगे या एग्जिट हो जाएंगे. क्योंकि जैसे जैसे कोई भी पर्टिकुलर, आप इस तरीके से समझिए कि एक एक ट्रेंड चल रहा है, जब भी वो फेल होता है ना, इसका ये एक सेंस है कि आपका पेस, जो इस ट्रेंड पे पेस चल रहा था, वो स्लो डाउन हो गया. और जब अप साइड ब्रेक करता है तो क्या होता है, उसका पेस और बढ़ जाता है. इसीलिए उसे ब्रेकआउट पे, ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट होता है तो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और अपनी लोकेशन बढ़ाते हैं. और जब ब्रेक डाउन होता है, कोई पर्टिकुलर ट्रेंड से बाहर आ जाता है स्टॉक, तो उससे पोजीशंस को कम करते हैं या एग्जिट करते हैं. तो क्लियर है. आयुष को था एसबीआई. Yes, sir. आयुष, क्या हो रहा है अभी? देखो, आप मंथली पे आप समझ जाओ क्या हो रहा है, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे कंसिडरेशन, कैसे इसको आप देख रहे हो कि कहाँ तक मैं रख सकता हूँ. तो अभी डेली चार्ट पे जाएंगे, ईएमए वगैरह नहीं देखा. ईएमए 50 को बार बार डाइसेक्ट कर रहा है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम जोन के लिए वो क्या हो गया, साइडवेज हो गया. शॉर्टर टाइम फ्रेम में वो साइडवेज हो गया. ट्रेंड अभी नहीं रह गया, राइट. लास्ट टाइम देखिए, लास्ट टाइम उसने कब 50 ईएमए पे सपोर्ट लिया, यहाँ लिया, एक बार ब्रेक हुआ पूरा सब कुछ, फिर आया, फिर से सपोर्ट लिया और फिर ब्रेक हो गया. यानी अभी ये पर्टिकुलर जोन में एक डबल बॉटम बन गया हमें इस ग्रीन लाइन पे. और इसी जोन में 399 टू 440, एक 10% के जोन में स्टॉक चल रहा है. यहाँ प्रीवियस हाई भी है, उसी जोन में चल रहा है अभी. इसको एक फेल्योर मान लेते हैं, ये ब्रेकआउट देने की कोशिश की और फेल हो गया. तो नेक्स्ट टाइम ब्रेकआउट पे इंटरेस्टिंग हो सकता है. कई बार ऐसे फेल्योर ब्रेकआउट आते हैं, मेन ब्रेकआउट के पहले 90% ऑफ द केसेस में ऐसे फेल्योर ब्रेकआउट आते हैं. और एक्चुअल ब्रेकआउट आने से पहले एक बार ब्रेकडाउन भी आ सकता है. तो इस तरीके से एक्सेस बुल, यानी जो जिनको जल्दी होती है उनको भी बाहर करते हैं मार्केट से, और जिनको पेशेंस नहीं होता है उनको भी बाहर करते हैं. और जब दोनों बाहर हो जाते हैं तब रियल मूव आता है. तो वो भी हम देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल में. अभी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर्सपेक्टिव से ही देखो, ट्रेंड पर्सपेक्टिव से ही देखो कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड मेंटेन्ड है, आप इसमें बने रह सकते हैं. ट्रेंड, जो बुलिश ट्रेंड था, वो ऑलमोस्ट ओवर है, क्योंकि स्टॉक बार बार इसी पर्टिकुलर, मैं एक डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, इसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे बार बार ऊपर नीचे हो रहा है. तो जब तक एक डिसाइसिव मूव ये नहीं लेता, अपसाइड या डाउन साइड, हम इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकते. इज इट क्लियर Yes. एवरीवन? यस. कोई दूसरा एग्जांपल कोई लेना चाहेगा? Naveen Fluorine. नवीन फ्लोराइन. Have we taken this example earlier?
ओके, लेट्स सी, मंथली से ही शुरू करेंगे। प्रीवियस हिस्ट्री में जाएंगे, पूरा देखेंगे कहाँ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल टूल को ले लीजिए, प्रीवियस टॉप को देखिए, यहाँ टॉप और यहाँ टॉप है। तो एक ये रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट करने के बाद इसने कितनी अच्छी जर्नी दी। तो अभी इस लर्निंग से आपको क्या सीखना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट, यानी 2007 से लेके 2014 तक का ब्रेकआउट था, या 7 ईयर का ब्रेकआउट इस तरीके से ब्रेक करता है, तो 7 ईयर का ब्रेकआउट दे रहा है, तो कुछ तो इंपॉर्टेंट हुआ होगा उसके अंदर। वो आप अपने फंडामेंटल न्यूज सोर्स, उसके रिजल्ट देख के वेरीफाई कर सकते हैं ऐसा क्या हो रहा है 7 ईयर्स में, ऐसा क्या हुआ, क्या कोई नया कैपेक्स लगा दिया, क्या कोई नई फैक्ट्री डाल दी, क्या अपने वेरीफाई कर लो वहां से, अगर आपको इसमें हैवी चंक डालना है कुछ। अदरवाइज टेक्निकल फ्रंट पे ये मल्टी ईयर हाइज का ब्रेकआउट है, दिस इज क्लियर कट सेटअप टू टेक द एंट्री। तो 7 ईयर ऐसे मल्टी ईयर्स के हाई। अब यहां से निकलने के बाद ये स्टॉक ऊपर ही जाता रहा मंथली टाइम फ्रेम पे, कभी भी यहाँ तक में कोई दिक्कत है ईएमए पे, 50 मंथ मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, यहाँ तक ऊपर ही चल रहा है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इट टुक द सपोर्ट। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी वंस अगेन, क्योंकि ये जो इतना बड़ा ट्रेंड है तो पहली बार सपोर्ट लेके 95% चांस थी कोई भी ट्रेंड जिस ईएमए पे स्टार्ट होता है वहां पे पहली बार सपोर्ट लेके जरूर ऊपर जाता है। एक बार में ट्रेंड कभी खत्म नहीं होता है, देयर इज अ गुड चांस कि वहां से वो बाउंस लेगा, स्पेशली जो वेरी बुलिश है वो तो जरूर लेगा। अभी तो इसमें बीच में वो 20 ईएमए पे यहाँ बाउंस ले रहा होगा। चलिए मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए इस जोन में तो 20 मंथ के एवरेज पे ही बाउंस ले रहा है जब एक यहाँ करेक्शन आया, और ये करेक्शन थोड़ा डीपर है, ऐसे पता नहीं चलता आपको। 412 से लेके 254 आ गया, ऑलमोस्ट 40-50% का करेक्शन है। तो अगर किसी स्टॉक में आप 90 रुपीज से 900 रुपीज 10x के लिए सोचते हो, तो बीच में ऐसे 20-30-40% का करेक्शन आते रहेंगे, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक रहे। तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो अगर आपने सही से पकड़ा है, क्योंकि ये 30-40% इरेज हो जाना, और अगर वो सरवाइव नहीं किया तो आपका पूरा गेन जो है काफी हद तक कम हो सकता है। तो अभी मंथली पे देखेंगे कि मंथली पे ट्रेंड कैसा चलता रहा। तो यहाँ से निकला 20 पे पहली बार फ्लैटिश हुआ, और फिर वापस से पहली बार 50 पे अपसाइड गया, अभी तक वापस लौटा है कभी भी। तो नेक्स्ट टाइम 20 पे मिलता है या 50 पे मिलता है तो क्या हो सकता है हमारे लिए। और एंट्री का जब, चांस। हाँ, और जब भी स्टॉक इस तरीके से कोई फ्लैटिश जोन, एक जोन बना देता है, एक रेजिस्टेंस बना देता है, तो जब दोबारा से उसको यू टर्न लेके उसको एग्जिट करके ब्रेक देता है तो वहां फिर अपॉर्चुनिटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अपॉर्चुनिटी सिर्फ 2014 में थी, अपॉर्चुनिटी यहाँ भी थी, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी थी जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया। तो जब यहाँ से निकला, ये जोन को पूरा कंसोलिडेट होकर फिर से प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट कर दिया। तो अभी अभी करेक्शन देता है तो क्या करना चाहिए, ये जो टॉप बनाया, अगर उसके 15-20% के अंदर ही अंदर है प्राइस, तो तब तो वेट करना चाहिए कि उसे पूरा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अगर 30-40-50% तक के ब्रेकडाउन मिल जाते हैं, ईएमए तक आ जाता है, तो वहां पे आप थोड़े रिस्क के साथ वहां पे इमीडिएट एंट्री कर सकते हो, क्योंकि इमीडिएट बाउंसेज आ सकते हैं। अगर जब शार्प, जितना शार्प फॉल आएगा अगर किसी करेक्शन में, तो शार्प बाउंस आ सकता है। अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट पे बात कर रहा हूँ। तो आप, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी शार्पली गिर रही हो तो आप उसे, शार्पली गिर रहा था, दर्पण भाई ने बोला था कि शार्पली गिर रहा हो शार्पली उठ जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। जब आप अपना नॉलेज तब इम्प्लीमेंट करिएगा जब यहाँ 4 महीने का पूरा सेशन, 4-4.5 महीने कंप्लीट करिएगा और सारी चीजें एक साथ जज करनी है। तो आप यहाँ पे बहुत हैवी बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बहुत ही तेज है, देख रहे हो आप कितना तेज है। 25 रुपीज से ये स्टॉक 400 रुपीज पे है, राइट। 40 टाइम, सॉरी 16 टाइम्स, 17 टाइम्स का इसमें अपसाइड मूव आ चुका है, और उसके बाद एक 30-40% का करेक्शन कुछ भी नहीं है, राइट। तो इस तरह के करेक्शंस जब भी कोई स्टॉक बहुत हैविली ऊपर चलता है तो उनमें अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओनली कंसिडरेशन वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होना चाहिए। आप हमेशा कभी किसी कंपनी में मैनेजमेंट का इशू हो, किसी, अभी इसी की फैक्ट्री में, किसी फैक्ट्री में फायर हो जाए और वो पूरी मार्केट ऊपर है, वो फैक्ट्री सिर्फ वही पर्टिकुलर प्राइसेस गिर रहे हैं, तो क्या वो अपॉर्चुनिटी है?
उसका तो पूरा बिजनेस ही बंद हो सकता है, राइट? वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस तरीके से हमेशा समझना चाहिए कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो करेक्शंस आते हैं, टेक्निकल फैक्टर्स के ओवर बाई के होने की वजह से जो करेक्शन आते हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हर फॉल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हमेशा याद रखना। फॉल में भागना है, फॉल में भागना है, जब वापस से जर्नी शुरू हो तो ऊपर आना है। तो ये दो लाइन से ही मुझे दो मेजर अपॉर्चुनिटी मिली थी, यहाँ के ब्रेकआउट पे भी। तो अगर किसी ने यहाँ 900 पे एंट्री की तो उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब ये स्टॉक इतना स्ट्रांग है, 2020 की जो लास्ट कोविड फॉल में भी ये 2700 से सिर्फ 2200 तक आया है। इतना इतना कम करेक्शन तो सिर्फ टीसीएस लेवल के स्टॉक्स में हुआ है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा था इसमें, कोई इसको सेल करने को रेडी नहीं था, राइट? कि मार्च के कोविड फॉल में भी इसने 20% 25% के ही करेक्शन में संभल गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट? अब हम थोड़े ट्रेंड बना के देखते हैं कि क्या हो रहा था यहाँ पे। यहाँ से लोएस्ट प्राइस लिया, यहाँ का लोएस्ट प्राइस लिया, और एक चैनल बनाने की इमीडिएट ट्राई किया। सेंटर को हमेशा ध्यान में रखते हैं चैनल बनाते हो। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे ब्रेकडाउन था, तो चैनल टॉप से चैनल बॉटम तक प्राइसेस आए, अभी चैनल टॉप में चल रहा है, राइट? ये यहाँ पे मंथली चैनल पे टॉप पे चल रहा है। अभी मैं आरएसआई वगैरह की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे देखें तो ये चैनल के बाहर का हिस्सा था, तो ये एक चैनल, एक जो ट्रेंड चालू हुआ वो यहाँ से चालू हुआ। तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी, जो चैनल बॉटम से लेके चल रहे हैं। टॉप टॉप साइड के तो ऑलरेडी उसने ब्रेकआउट दे दिया है, यानी अगर आप प्रीवियस हाईज को लेके एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, तो देखिए इसी को उसने ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया था और यहीं से उठ गया था। तो लास्ट उसने यहाँ जो सपोर्ट लिया ना, उसका रेंज यहाँ से आ रहा था। प्रीवियस सारे हाईज की जो रेजिस्टेंस थे, वो उसको क्रॉस करने के बाद वहीं उसने सपोर्ट ले लिया। ओके, इसको और क्लोजली देखते हैं कि अभी वीकली पे क्या हो रहा है। वीकली पे ये 20 वीक की लाइन है, येलो लाइन, जो 20 वीक का ईएमए है, ये येलो लाइन। ब्लू 50 का है और रेड 200 का है। अभी ये 20 वीक पे ही चला जा रहा है ऊपर, इसकी अलग ही दुनिया में चल रहा है, इसको कोई फॉल कोई करेक्शन से मतलब नहीं है। तो इस तरह के स्टॉक आपको शुरू में ढूंढने चाहिए। जब आप अपनी पकड़ मजबूत कर लो, तो फिर दूसरे स्टॉक्स में, ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक में देख सकते हो। तो कम वोलेटिलिटी के स्टॉक ढूंढिए, जितना कम वोलेटाइल रहेगा उसमें आपको एग्जिट करने के लिए टाइम मिलेगा, राइट? क्योंकि ये ज्यादा गिरता ही नहीं है, तो आपको टाइम देगा। अगर गिर रहा है तो आपको पता है कि यहाँ 20 तक में तो मुझे बाउंस आना चाहिए, नहीं आता है तो आपको बहुत क्विकली पता चल जाएगा कि अब मुझे यहाँ से निकलना है, राइट? तो ये ट्रेंड है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड देख लेंगे क्या हो रहा है। तो फिर वंस अगेन बॉटम लीजिए, जो भी बॉटम चल रहा है वहां से लीजिए, ट्रेंड लाइन बना दीजिए। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, अभी तक कोई वीकनेस है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन में? नहीं, नहीं है, राइट? all are support only. हाँ, ऑल आर सपोर्ट ओनली। तो अभी आपने इस Yes. ये दो जो मेजर बॉटम है उनको लेके बनाया, तो अभी की जो करेक्शन आया था फिर वही अपॉर्चुनिटी है। तो कभी Yeah, ऊपर correct. से कभी नीचे यहाँ आए तो ये अपॉर्चुनिटी, ये अगर टूट जाए देन नाउ यू स्टार्ट कंसिडरिंग कि अब तो नेक्स्ट सपोर्ट पे कहीं आएगा, राइट? क्योंकि एक ट्रेंड ब्रेक होगा, दूसरा एक सपोर्ट ब्रेक होगा, दूसरे सपोर्ट की तरफ आएगा। उस सपोर्ट पे बाउंस मिलेगा तो अपॉर्चुनिटी है, नहीं बाउंस मिलेगा तो अगले सपोर्ट का वेट करिए। तो इस तरीके से एंट्री के लिए आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स बना सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक आप सपोर्ट बना सकते हो, जहां से भी एक मेजर बाउंस मिले आपको, या प्राइस मेजरली रुकते हुए मिले, उस प्राइस को इमीडिएट इंपॉर्टेंस दीजिए। यहाँ पे मल्टीपल वीक्स यहाँ पे था, 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 12 वीक तक यहाँ प्राइस यहाँ रुका हुआ था, और ऊपर जाने के बाद इसको रिटेस्ट भी किया है। तो फ्यूचर में कभी भी ये प्राइस बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट ईयर तक, सॉरी 6 मंथ तक ये प्राइस इसी जोन में रहा है। फिर इसके ऊपर का भी एक आपको मिल गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था जो ब्रेकआउट दिया, तो ये प्राइस भी आपके लिए सपोर्ट रहेगा। इस तरीके से आप मल्टीपल सपोर्ट्स बना सकते हो, जिस लेवल का करेक्शन होगा उस लेवल के सपोर्ट तक आएगा।
तो उन रीजन्स में आप अपने लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और अगर आप पहले से बहुत पहले से इन्वेस्टेड हैं, जैसे जैसे सपोर्ट ब्रेक होता है वैसे आपको सेल करना चाहिए। वापस से जर्नी जब अपसाइड की शुरू होती है, ये चीज हमेशा अगर आपने माइंड में बिठा लिया कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है उसी साइड में चलना है। आप ट्रेंड नहीं बना सकते, हम रिटेलर ट्रेंड नहीं बना सकते। सिंपल ये मान लीजिए हम लोग वीक हैं। किसी स्टॉक में रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन कितना होता है? 50% या उससे ज्यादा तो प्रमोटर के पास होता है, म्यूचुअल फंड्स के पास होता है, एफआईआईस के पास होता है। तो रिटेलर का चंक कितना होता है? 20 से 25%। और वो जो 20-25% होता है उसमें भी लाखों रिटेलर्स होते हैं, तो सबकी अपनी अलग थिंकिंग है, अपनी जरूरत है। तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो वो वीक है, वीक लिंक है रिटेलर्स, राइट। थोड़े से ही फ्लक्चुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो आप ये मान के चलो कि जो डायरेक्शन डिसाइड करता है वो बड़े प्लेयर्स करते हैं, राइट। तो उनको फॉलो करना है, तो वो जो ट्रेंड डिसाइड कर रहे हैं उस ट्रेंड को फॉलो करिए। अगर वो स्टॉक बुलिश में दिखता है तो आप उसके साथ बाइंग साइड सोचिए। कोई स्टॉक गिर रहा होता है तो उससे एग्जिट की साइड सोचिए। अपोजिट मत खड़े हो जाइए, हाँ, अपोजिट नहीं खड़े होना है। ये लाइन इधर चल रही है, इसी साइड में सोचना है। प्राइस गिरने लगा उसके साइड में सोचना है। यस, एनीवन, एनी अदर एग्जांपल? आई विल Clean टेक science एग्जांपल्स technology. ओनली। Clean सॉरी, science and technology. Clean science and technology. अभी और भी लोगों से एग्जांपल लेता हूँ सर, फिर ले आता हूँ मैं आपके। ओके, Okay. एनीवन एल्स? Sir, Orient Organics. Sorry, Orient Aromatics. Aromatics. Okay. सभी Yes. लोग आप लोग भी बोलना शुरू करिए, जो लोग नहीं देते हैं एग्जांपल। कोई भी कंपनी, टूथपेस्ट, बाटा, रिलैक्सो, जो भी यूज करते हैं उसका नाम ले लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आपने स्टडी किया हो तभी बोलना है। प्रोडक्ट यूज करते हैं, बस इतना जानिए कि वो लिस्टेड होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। तो क्या करेंगे, इसे मंथली से शुरू करेंगे। मंथली चार्ट पे ये पर्टिकुलर रेंज था, ये पर्टिकुलर रेंज था जिसको उसने 2000 जुलाई 20 में ही ब्रेकआउट किया। इसकी ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, जुलाई 2019 में ही ये आया है स्टॉक। अभी लास्ट एक बड़ी बड़ी कैंडल बनी है जो इंपॉर्टेंट है, उसका ये बेस दिख रहा है, यानी ये पर्टिकुलर 744 पे सारे मंथ अभी उसके ऊपर ही है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया। दूसरा इम्पॉर्टेंट लेवल हुआ जहां से कोई बड़ा मूव आता है, उसका बॉटम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी वो लेवल ब्रेक होता है ना, तो एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने के चांसेस रहते हैं। चलिए इसको वीकली पे चले जाते हैं, मंथली पे ज्यादा कुछ है नहीं। वीकली पे जाके के सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं। तो जैसे आप मल्टी ईयर देख रहे थे, वैसे मल्टी वीक देखना शुरू करिए। मल्टी वीक तक इस रेंज के ऊपर नहीं जा रहा था प्राइस। ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था 2221। जब 2221 के ऊपर इतने स्ट्रांग कैंडल के साथ ऊपर गया, इतने स्ट्रांग कैंडल के साथ, तो क्या यहाँ अपॉर्चुनिटी थी? Yes. तो ये जब रेंज ब्रेक होता है तो अब अपॉर्चुनिटी रहती है। एक अच्छे लेवल में अगर स्टॉक बहुत दिन तक टिका हुआ है, तो जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड के हिसाब से आपको डिसीजन लेना। तो अभी वीकली लेवल पे अभी हमें एक ट्रेंड भी मिलता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ 20 वीक का एवरेज देखिए कितना अच्छा सपोर्ट बन रहा है। यहाँ से निकला 20 वीक पे ही बाउंस, 20 वीक पे दोबारा बाउंस। लेकिन अभी हमें इमीडिएट क्या दिखाई दे रहा है? एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है जिसपे वो 2 टाइम रिजेक्ट हो चुका है। कोई भी काम 2 बार हो जाए तो आप समझिए वो 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। कोई भी ट्रेंड 1-2 बार रिपीट हो गया मतलब वो रिपीटेटिव है इन नेचर। तो 2 बार मिला तो थर्ड टाइम के लिए आपको, अब यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो इस तरीके से देखना चाहिए। अब वो ऐसा नहीं है कि 2 कैंडल मिल गई अगल बगल, उसे आप 2 बार कहिए। अभी हम यहाँ जोन की बात कर रहे हैं। वीकली पे हमें दिखना चाहिए कि एक बार यहाँ से नीचे गया फिर ऊपर आया, तो इस तरीके का जोन हमें दिखना चाहिए। यहाँ पे बॉटम्स लेके जो मिनिमम बॉटम है, और वहां देखते हैं कि कुछ ट्रेंड स्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, जिसके बेसिस पे हम कुछ आगे के लिए बोल सकें, प्रेडिक्शन ले सकें। एक ये पर्टिकुलर ट्रेंड दिख रहा था, बहुत बहुत क्लीन नहीं है क्योंकि ये जोन नहीं दिख रहा है।
इसको देखते हैं, यहाँ से टॉप से देखते हैं पैरेलल चैनल में। क्या इसको कंसिडर करना चाहिए? लेट्स सी, और इसे यहाँ ले लें। ओके, या दिस लुक्स मच क्लीनर। बाकी चीजें डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ सेंटर लाइन के पास भी एक्टिविटी होती दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रहा है। ये मल्टीपल पॉइंट पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो चैनल का टॉप रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अभी हम चैनल बॉटम से नीचे हैं, तो अभी हमें मोस्टली इसमें वेट करना चाहिए चैनल के बॉटम तक आने का, क्योंकि इस तरह का जो ये करेक्शन था, मे बी वी आर इनटू सेम करेक्शन। और जब ये चैनल बॉटम से आके इस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ से ब्रेक करेगा, दिस पर्टिकुलर रीजन, यानी दिसंबर में आसपास कहीं पे ब्रेक करेगा, दैट विल बी द बेस्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी ब्रेक नहीं कर सकता, पर यहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू हियर। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस चैनल बॉटम की साइड से आके ब्रेक होता है, देयर इज अ गुड चांस कि वो वहां से ज्यादा देर तक सरवाइव करेगा। ये आप जब 10, 20, 50, 100 चार्ट पे आप स्टडी करोगे, तो आप मार्केट के रिपीटेटिव नेचर को पहचानोगे कि ज्यादातर स्टॉक्स में किस तरीके से बिहेवियर होता है। यहाँ से भी ब्रेकआउट मिल सकता है, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं जस्ट इसी के नीचे स्टॉप लॉस रख के। या ये मीटिंग ओवर हो रही है, इमीडिएटली आई विल स्टार्ट द अनदर वन। क्लीन है ये सर? एनी कमेंट डॉक्टर साहब? Yeah, yeah. Thank you. Thank you.